This conference will now be recorded. Okay. Hi, good afternoon, everybody. I know there's some people more left to join in, but हमारी वंदना को लेट हो रही है, so हम लोग session start करेंगे. First of all, a big round of applause to everyone who's made amazing efforts in the December exam. Everyone means everybody. कभी कभी ऐसा होता है कि we talk so much about the rankers that the other students feel कि नहीं ma'am, not happy with my efforts. I told you before also, and I still keep telling you that I am proud of you. The day you picked up this professional degree and the day you chose a difficult path, तब से ही decide हो गया कि you are somebody who belongs to the cream class. तो फिर आप वैसे ही अपने आप को प्रूव कर चुके हो. But yes, aiming high and every time having a higher aim as compared to the previous time आपको कहीं ना कहीं बेटर बनाएगा. ठीक है, अगर जो मैं कल कर रही थी वही मैं आज करूंगा, वही मैं फ्यूचर में करूंगी, एंड आई डू नॉट हैव एनी एस्पिरेशंस टू गो फर्दर अहेड, तो मजा नहीं आएगा लाइफ में, थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी, मोनोटोनस हो जाएगी. That's the exact reason we're pushing few people so that you take inspirations from them, and हम लोग कोशिश करेंगे if these people have time they can be your study buddies future में or for the coming attempt whenever they get time, because ये लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं. And I'll tell you the name of few of the amazing achievers this attempt. First we have Lovish with 90% marks, third India rank, and fourth world rank. We have Falak with 88% marks. और इन सब की स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये लोग आके खुद बताएंगे. विद 6 वर्ल्ड रैंक वी हैव वंदना with 85% marks and 9th world rank. We are fighting for the recognition for Falak and Vandana, so let's hope and let's keep our fingers crossed. We have a meeting on Monday with ACCA prize winners team, and we're trying to convince them to get declared, formally give you on paper in writing that you've got respectively 6th rank and 9th rank. And then we have Rahul who cleared 3 papers in 1 attempt. Super. और ऐसे नहीं कि कोई 50-60 मार्क पे स्कोर्ड 70s में in all the papers, so that's amazing achievement. We also have Shubham who's cleared 2 papers in 1 go. Amazing. And of course all the people who have cleared their respective papers, amazing achievement. अब कई बार क्या होता है, हम थोड़े स्टक हो जाते हैं कि how to get ranks या how to get मेरे को काफी जनों ने ये भी पूछा. I think these people will be best to guide you कि यार कैसे 3 पेपर एक अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, कैसे रैंक वाले मार्क्स लाते हैं. सो आई थिंक दीज पीपल आर बेस्ट टू टेल यू. वी विल स्टार्ट विद आवर आर्ट ऑफ नेगोशिएशन टुडे. वी हैव मेनी थिंग्स लाइंड अप. पहले तो हमारी ये चारों फ्यूचर स्टडी बडीज जो हैं वो आएंगे और अपने अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. आई नो इट इज अनकॉल्ड फॉर, इट्स अचानक से, so but I'm sure that you just have to share your experience, how it was, what you did to make sure that you clear 3 papers or you get ranks. ठीक है, that is what I think is going to motivate your juniors. Plus at the same time we're going to discuss about the art of negotiation. और आज हमें निखिल प्रेजेंटेशन देंगे. हमारा पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स का पूरा मंथ चल रहा है, जहाँ पे स्टूडेंट्स सेशन ले रहे हैं 10-15 मिनट्स के लास्ट में. And the exact reason why they are taking the session is, one, they need to improve over their communication skills. दूसरा, हर student जो session ले रहा है is getting a certificate from PFC, so your CV becomes little heavy. You can mention it in your CV also, right? So first, because Vandana is getting little late, on my request, she's right here. She's leaving for Mumbai. She's a flight to catch. So I will ask Vandana first to come and discuss her experience. Let me tell you, she scored 85 marks in FM despite of the fact that she's working full-time job mein hai. And I think this is a great achievement. So over to you, Anna. Come, have a seat. Haji, so we just want you to share your experience. Okay, so good afternoon, everyone. The mask because they won't be able to hear you. So, good afternoon, everyone. So, yes, this time I scored 85% in FM, and honestly, it feels very good. But behind that feel-good feel, obviously, there is a lot of stress. I won't lie, it's not easy. It's been hard. But what you have to make sure always is that you finish the syllabus on time. Always keep targets for yourself. Like I used to give targets for my every week. Okay, this week I'll complete this many chapters. Not only reading the chapter and memorizing the chapter, complete all the questions related to that chapter. After you finish the syllabus, always keep a target of 1 month.
even though it's a bit unrealistic, I understand, especially when you're doing some other thing, you're doing some course, you're doing your graduation, you're doing a job, it's unrealistic. But keep those targets, because ultimately, even if you achieve less than that, you have achieved more than what you can think. So it is good to keep high targets, because ultimately you can achieve them. There's nothing impossible. Also, keep in mind that you have to do all the questions, all the test kit questions. Like ma'am always says, it's nothing new what I'm saying, it's actually what she says, but just apply it, because it's generally works. So yeah, it's just effort, consistency, and be confident. Yeah, that's all. I completely agree. जो बहुत सारे तुम्हें शॉर्टकट मारते हैं, if you are skipping the questions, you won't get great marks. आपको सारे questions करने हैं, जो टेस्ट किट में दे रखे हैं, जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में दे रखे हैं. All the questions are something which are mandatory. You have to finish them all, right? So thank you, Vandana. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Okay, so the other 3 study buddies ready for that. Now I'll tell you what is exactly the study buddy idea, and you will volunteer for it. I won't be pushing you because you have your own exams to take care of. We wanted some students, क्योंकि क्या होता है, मैं तो रोज ही बोलती हूँ यार, मतलब मैं तो हर बार ही बोलती हूँ, तो कभी कभी क्या होता है, वो बार बार बोलने का इफेक्ट खत्म हो जाता है. So we wanted some students to be the mentor of other students, and we wanted you to take up calls or take up roles, maybe once in a week, maybe 2 hours in a week, or maybe 1 hour in a week, where you can interact with your juniors and the other students जिनको कुछ problem आ रही है. They will not ask you something related to the syllabus, but they might seek your guideline कि मैं क्या करूं जो मैं बहुत अच्छे marks ले आऊं, या मैं क्या करूं जो मैं multiple papers एक attempt में clear कर लूं. So maybe you can, with your experience, help them out, tell them what are the do's and don'ts of clearing that paper. It is going to have 2 positive impacts. One, your juniors will get a guideline. Second, you will consistently get that reminder call कि ऐसा नहीं है कि मैंने एक पेपर में अचीव कर लिया या एक अटेम्प्ट में अचीव कर लिया तो मैं रुक जाऊं, because I have to keep that going, because I have impression over multiple students, so I have to keep that going. ऐसे मैंने कई बार देखा है कि काफी बच्चे एक बार ही रैंक वैंक ले आते हैं या एक बार ही अच्छे से पेपर्स क्लियर कर लेते हैं, फिर बड़े satisfied हो जाते हैं, बस अब तो कर लिया, and then the cycle goes in another direction. So it will be a constant reminder for you also कि नहीं अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ स्ट्रगल, पूरा ACC affiliate बनना है with great scores so that I remain their study buddy, right? So I would talk to you after the session, and you can volunteer who's gonna be the study buddy for the first week, for the second week, and we'll organize an extra session of these students once in a week, every Saturday, 1 घंटा extra other than the normal session. उसमें बाकी सारे student अपनी इच्छा से join in करेंगे. They can come live, they can join it online, and whatever questions you have to ask. So I have an exam next week, or I have exam next month, what should I do to get this, or मेरा revision नहीं हो पा रहा है, छोटे छोटे जो आपके questions होते हैं कि मैं आगे का याद कर रहे हैं तो पीछे का भूल रहे हैं, how do you retain that, क्या notes बनाऊं कि flow charts बनाऊं. So they might come up with such questions to you people, and you just have to guide them, right? What comes around goes around. You help the others, somebody will come and help you when you're in trouble. So I think it's going to be a great platform for all the students to interact with their seniors, take an inspiration and go in the same direction, right? चलें, ठीक है. Next आ रही हैं फलक. चलो ठीक है, love it. Okay, I'll just come. We also have a small celebration today once we're done with the session. Lovish, aa jao. Lovish, bye bye.
This conference will now be recorded. Adi, so here we have Lovesh. ओके तो सबसे पहले तो जैसे उन्होंने बताया था अभी कि सारी बुक्स वाला पढ़ना है, बुक्स को पढ़ो। उसके बाद क्या है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, वापस आप पढ़ोगे तो वापस आएगा। तो पहले बुक्स पढ़ो, फिर क्वेश्चंस करो, फिर वापस आप कुछ पढ़ोगे ना सेम चीज़, तो आपको कुछ नया पता पड़ेगा। तो बेसिकली सबसे पहले कोर्स जितना जल्दी हो कंप्लीट करो, उसके बाद जैसे वापस रीड करोगे तो कुछ ना कुछ नया पता पड़ेगा। तो इसलिए टाइम पे टाइम करते रहो, फिर क्वेश्चंस करोगे साथ में, तो वापस क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको कुछ ऐसा पता पड़ेगा जो बुक्स में नहीं था। तो जैसा डीप अंडरस्टैंडिंग होगी जो बुक्स में नहीं था कभी, तो वो पता पड़ेगा। तो इसलिए क्वेश्चंस भी करो, उसमें भी करो, और क्वेश्चंस करने के बाद आंसर्स रीड करो। भले आपका सही है, स्टिल उसके पीछे क्या रीजन है वो रीड करो बस, और मार्क्स टाइम टू टाइम अटेंड करो। ग्रेट लविश, मेरे ख्याल से एक पॉइंटर जो काफी जनों ने मुझसे क्लासेस में भी पूछा है और काफी जनों का इशू आता है, हम लोग को मैम चैप्टर तो समझ में आ गया, घर जाके क्वेश्चन करे समझ में नहीं आ रहा है तो फिर फ्रस्ट्रेट हो रहे, 2 क्वेश्चन के नहीं हुए फिर छोड़ दिया। सो आई थिंक लविश हैज क्लियर्ड वन बिग पॉइंट, सबके साथ ऐसा होता है। आप चैप्टर समझोगे, चैप्टर समझने के बाद ऐसा नहीं होगा कि अचानक से तुमको सब कुछ आ जाएगा। पॉसिबल है पहला क्वेश्चन टाइम करोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, हो सकता है आपका आंसर ही ना आए, दूसरी बार में आपको थोड़ा बहुत आए, तीसरी बार में लंबे क्वेश्चन में स्पेशली प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट लंबे क्वेश्चन से जी चुराता है और आधे घंटे तक क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दिया। The number of times you do it, that is the number of times you will get the benefit. इनिशियली 2 से 3 चैप्टर होते हैं, उसमें एमसीक्यूज में 30 to 40% सही होते थे बस अच्छा, स्टार्ट में, फिर वो धीरे धीरे वापस जब पढ़ता रहा फिर थोड़ा वापस। तो देखो भैया 90% स्कोर करने वाला बंदा आपको बोल रहा है कि जब मैंने पहले क्वेश्चंस करना चालू किया तो 30 to 40% स्कोर हो रहे थे, तो अभी गिव अप कर लेते, उधर तो स्कोर बढ़ता क्या नहीं बढ़ता ना। सो डू यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, नहीं हो रहा वापस करेंगे, नहीं हो रहा वापस करेंगे, ठीक है। अमेजिंग। और वन मोर थिंग, जैसे आप पढ़ रहे हो ना तो कोई एक जना या 2-3 जने ग्रुप में ले लो साथ में बैच में, हाँ तो डिस्कस करोगे। यार ग्रुप स्टडीज ग्रुप स्टडीज सोर्स, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आप टाइम्स देयर बी टाइम्स जब आपका मोटिवेशन लेवल एकदम से डिप कर जाएगा। बट क्या वंडरफुल बात है कि हम लोग ना सब एक दूसरे से अलग हैं, तो जिस पॉइंट पर मेरा मोटिवेशन लेवल डाउन जाएगा जरूरी नहीं है मेरे फ्रेंड का मोटिवेशन लेवल डाउन जाए। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मेरा मोटिवेशन लेवल डाउन गया, मेरे फ्रेंड का मोटिवेशन लेवल इज स्टिल अप एंड हाई, तो उस समय वो मुझे पुल अप कर लेगा कि नहीं 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 करना है करना है। फिर जब मेरे फ्रेंड का मोटिवेशन लेवल डाउन जाएगा तब शायद मेरा मोटिवेशन लेवल रिवाइव कर चुका, आई विल पुल देम अप। सो ग्रुप स्टडीज are one very good way of ensuring that you are consistent with the performance. Consistency बहुत important है ना। मेन प्राइम ओवर है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया हार जाएगा तो किस बैट्समैन को लॉन्च करेगा? जो कंसिस्टेंट है उसको, कि जो चौके छक्के मार के कभी भी आउट हो सकता है? कंसिस्टेंट को। सो यू हैव टू बिकम अ कंसिस्टेंट बैट्सपर्सन in comparison to a person who can किसी अटेम्प्ट में एकदम चौके छक्के और किसी अटेम्प्ट में गूगली। तो ये बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, and your group studies are going to help you maintain that balance, right? Next we have Rahul with us. So Rahul has set a new benchmark. मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत बार ये कह रखा है कि 1 से 1.5 साल में भी एसीसी हो जाता है, बट बहुत जने बिलीव नहीं करते उस बात को। So Rahul has cleared 7 papers in the span of 6 months, which is very commendable, है ना। और 3 पेपर्स एक शॉट में क्लियर किए, जहाँ पे हमारे काफी स्टूडेंट्स एक पेपर को 6 महीने लेते कि नहीं अभी मेरा अच्छे से नहीं हुआ, 3 महीने ड्रॉप करके और 3 में ढंग से पढ़ेंगे। सो मे बी राहुल कैन शेयर हिज एक्सपीरियंस। मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैं आगे के मतलब जब भी कुछ प्लान करता हूँ तो आगे के 2-3 साल एक साथ प्लान करता हूँ। इस साल ये है, नेक्स्ट ईयर ये, थर्ड ईयर में ये है, और उसके बाद छोटे-छोटे प्लान्स क्रिएट करता हूँ मैं। जैसे मेरा मई के अंदर एग्जाम में सीएफए का, तो वो मैंने 2 साल पहले प्लान कर लिया था कि वो ठीक है 2 साल पहले ही देना है मेरे को।
उसके पहले मेरे को इसी के पेपर क्लियर करने थे, 7 पेपर, ये मेरा टारगेट था। तो उसके हिसाब से मैंने जो मंथ्स लगने चाहिए थे उसके हिसाब से उसके पहले मैंने एनरोल किया और फिर एग्जाम देना शुरू किया। तो ऑलवेज है कि आगे के 3 साल तो प्लान होनी चाहिए कि क्या करना है, और 1 साल तो स्टिफ रहना चाहिए। जो प्लान बना है उस पर एकदम स्टिफ रहो, कभी बैकआउट मत करो प्लान से। तो जैसे मेरे 4 एग्जाम क्लियर हो गए थे नॉलेज के, कि मैं मीनाक्षी से मिला तो मीनाक्षी ने बोला था कि ट्राई टू हैव 3 to 4 पेपर क्लियर फॉर दिसंबर। तो मैंने 3 की प्रैक्टिस तो मैंने कर ली थी, तो फिर मैं 3 एग्जाम दिए। तो द थिंग इज कि जैसे मान लो कि नॉलेज का एग्जाम दे रहे हो, डेट डिसाइड कर लिया अपने कि 20 को पेपर देना है, तो एनी हाउ पेपर देना ही देना है, उससे बैकआउट मत करो। क्योंकि अगर इतना बैकआउट करते हैं अपन तो लगता है कि चलो ठीक है अपन नॉर्मल हो गए, आज नहीं तो कल दे देंगे, परसों दे देंगे। ऐसा नहीं, डेट डिसाइडेड है तो डेट डिसाइडेड है, उससे बैकआउट मत करो। क्योंकि जैसे मान लो कि अगले 15 दिन में एग्जाम देना है, तो 15 दिन की अलग स्ट्रेटेजी बनेगी। 2 दिन ये पढ़ना है, 2 दिन टेक्निकल आर्टिकल्स पढ़ने, 2 दिन मॉक देने, और ऑलवेज ट्राई टू हैव 2 to 3 रिविजन, बिकॉज रिविजन बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब अगर 20 के चैप्टर पर आते हैं अपन, तो पता पड़ता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में क्या था, वो कैसे लिंक हो रहा है। जब 3 बार अपन करते हैं ना, तो लिंकेज बैठते हैं चैप्टर्स के अंदर, तो अभी हेल्प करता है वो चीज। और पढ़ाई के साथ साथ ट्राई करो कि रोज 1 या 2 घंटा स्पोर्ट्स खेलो, वो सा भी। उससे क्या होता है कि स्ट्रेस खत्म होता है, और मतलब वही स्ट्रेस खत्म होता है, और एक एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ चलो। ऐसा भी होता है कि अगर फेवरेट स्पोर्ट है, तो पता पड़ गया कि 8 बजे अपन को खेलने जाना, 8 से 9 खेलना है रात को, बैडमिंटन खेलना सपोज, ठीक है। तो 8 बजे के पहले एक्साइटमेंट में क्या होता है कि चलो फटाफट पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, फोन को साइड में रखो, क्योंकि इनको 1 घंटा खेलने जाना है। वो मेरा मोटिवेशन हो गया कि हाँ स्पोर्ट्स खेलना है, मेरे को पसंद है खेलना। तो उसके चक्कर में पढ़ाई अच्छी हो जाती है। और ऑलवेज ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन मोर प्रेशर, क्योंकि प्रेशर में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर अपने पास चांसेस नहीं है गलत करने के, चांसेस रिड्यूस हो जाता है हमेशा के लिए। दैट इज द थिंग। बहुत बढ़िया। आई थिंक अब आप शायद बिलीव करो इस बात को, जो क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे कहती हूँ, लेकिन अब अगर वो बंदा जिसने खुद ने 7 पेपर्स क्लियर किए 6 महीने, वो कह रहा है कि मैंने स्पोर्ट्स के लिए कुछ 1-2 घंटे रखे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हें 20 घंटे पढ़ना है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई स्टूडेंट अगर 12 या 20 घंटे पढ़ रहा है और उसका ध्यान ही कहीं और है, इससे कहीं बेहतर वो स्टूडेंट परफॉर्म करेगा जो भले 8 घंटे भी पढ़ा है पर उसका फुल कॉन्सेंट्रेशन है। स्पोर्ट्स और सम फिजिकल एक्सरसाइज इंश्योर्स कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बैठ पाता, और बहुत बार बोलते हैं कि ऐसा क्या करें जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन बैठ जाए। तो अंडरस्टैंड दिस दैट एक्सरसाइज, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, और क्या काफी जनों को ऐसा लगता है हम तो अभी छोटे हैं, हमारी तो वेट नहीं है ज्यादा, सो दिस इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ वेट, दिस इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एज। एक्सरसाइज इज मैंडेटरी फॉर एवरीबडी, स्पेशली मेंटली हेल्दी रहने के लिए। क्योंकि देखो मैं मेंटली हेल्दी की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि है ना यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा, है ना। बट देखो मैं पहले भी कह रखा है कि स्ट्रेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत ही कंसिस्टेंट लाइफ जीते हैं वो आगे जाके वो जो सब बातें होती है सठा जाएंगे, हो जाएगा, उनके साथ होता है। जो लोग अप एंड डाउन स्ट्रेस में रहते हैं उनके साथ कभी ये इश्यूज नहीं होते। बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि अगर मैं यहाँ पर रैंक की तैयारी कर रही हूँ या मैं यहाँ पर मल्टीपल पेपर्स एक अटेम्प्ट में क्लियर करने की तैयारी कर रही हूँ, तो इसका मतलब मेरे को मेरे स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। और अभी तक तो कुछ पढ़ा नहीं, तो अचानक से कुछ कभी जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं किया और जिम चले गए और आज 50 kg के डंबल उठा रहे, क्या हो जाएगा? डंबल से नहीं टूटेंगे, अपनी हालत खराब हो जाएगी। चलो बहुत ज्यादा डंबल भी नहीं, 2 घंटे वर्कआउट कर लिया, जिंदगी में कभी वर्कआउट नहीं किया, 2 घंटे वर्कआउट कर लिया, क्या होगा? घर आ जाओगे, तबीयत खराब लग रही है, पैर दुख रहा है ना, सेम। हाँ, फिर अगले दिन छोड़ दोगे। सेम चीज आपकी पढ़ाई में होती है। सो योर स्टडीज आर योर मेंटल जिम। दिमाग यूज किया ही नहीं, वो अचानक से इतना सारा दिमाग यूज करना पड़ रहा है तो हैवी लगने लग जाता है। कोई चैप्टर कभी पढ़ा दो बहुत डेप्थ में जाके, सबकी शक्लों पे नजर आ जाता है कि यार लेट जाते कुछ जगह तो क्लास में। हाँ जी, तो सबकी शक्लों पे नजर आ जाता है, क्या मैम इतना स्ट्रेस दे दिया, क्योंकि हमने इतनी डेप्थ में जाके कभी सोचा ही नहीं अपनी जिंदगी में। So how to keep that brain balanced? Some workout in a day. Very good suggestion, राहुल। अगर 3 पेपर साथ में निकाल के वो अपने दिन में से 1-2 घंटे वर्कआउट के लिए निकाल सकते हैं तो you can do it too. Need not be a proper workout.
डू व्हाटएवर यू लाइक टू डू। आपको कुछ स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, एनी फिजिकल एक्टिविटी, आपको वॉक पे जाना पसंद है, गो फॉर अ वॉक, बट 1 hour इन अ डे सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट स्ट्रेस, राइट। 1 घंटा कुछ फिजिकल एक्सरसाइज चल रही है तो ब्रेन वो बैलेंस कर लेगा स्ट्रेस को, ठीक है। नहीं तो उस 1 घंटे में भी जो ब्रेक लिया उसमें बैठ के इंस्टाग्राम कर रहे हो, फेसबुक कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो और परेशान हो जाओगे और स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, राइट। एंड नाउ वी हैव पलक। पलक की मैं जर्नी बता दूं तो काफी इंटरेस्टिंग रही है। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था जो पलक ACCA छोड़ रही थी, हाँ, और शी वॉज अबाउट टू क्विट ACCA and now see as rank में आ गए। So I'm sure the students want to know from that to this क्या travel transitions रहे। पलक come। Hello everybody. Camera on Okay. Hello everybody. Good morning. And yeah, so ma'am is absolutely correct. एक point पे I was like, I'm like, I need to drop ACCA. मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये, मेरे level का course नहीं है। फिर मैम बोले कि नहीं, कुछ भी impossible नहीं होता है. You can do that too. So what I did is I changed my strategy. पहले I used to like mug up things and lead to like, of course, या तो pass और pass भी 50 या 60 से. Then I thought कि नहीं, we need to do something else in order to achieve something great. Then I used to like concentrate more on concepts and like उसमें मैम तो हेल्प करते ही थे। और बाकी मैम ने जैसे बोला कंसंट्रेट नहीं होता था, तो कंसंट्रेट के लिए बेस्ट थिंग इज स्पीक लाउड एंड देन रीड द सेंटेंसेस सो दैट दिमाग वहीं रहे। ना होता है ना ख्याली पुलाव कहीं और ही चले जाता है, तो वो चीज मेरे साथ तो बहुत होती है, पढ़ते पढ़ते कहीं और ही चले गए, तो इसलिए। एंड ग्रुप स्टडी ऑफ कोर्स इट हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज कोई चीज आप किसी को समझा रहे हो तो आपको ज्यादा जल्दी समझ आती है और ज्यादा दिमाग में रहती है। एक चीज अपन खुद पढ़ रहे हैं वो इतना रिटेन नहीं रहेगा, एक जो अपन समझा रहे हैं उसको समझाने के लिए अपने को एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, तो वील थिंक मोर ऑफ इट। Amazing. Conceptual studies are something which are mandatory for ACCA, क्योंकि ACCA अपन cramming से तो निकल नहीं सकते। और प्लस very good thing जो पलक ने बोली कि अगर आप किसी को अपने साथ में फेलो स्टूडेंट्स को मदद करने के लिए, एंड आई यूज्ड टू डू दैट एज अ स्टूडेंट, ऐसा लगता था कि मैं हेल्प कर रही हूँ, बट एक्चुअली इट वाज माय हेल्प, क्योंकि आप किसी को मदद करने के लिए क्लास के बाद रुक कर उनको बोलते हो अच्छा मैं टॉपिक समझाती हूँ तुम्हें, गलत मत समझा देना, मेरे बच्चों को फेल कराया तुम प्रॉब्लम में आओगे बट तुमने बोला कि मैं ये टॉपिक समझा देता हूँ या मैं ये टॉपिक समझा देती हूँ, तो क्या होगा, सामने वाले को समझाने के चक्कर में यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट, राइट। तो आपकी मदद हो रही है रिटर्न में, राइट। सो दैट इज वन गुड स्ट्रैटेजी, वेरी गुड। जोर जोर से पढ़ना, देयर इज अनदर गुड स्ट्रैटेजी। अगर आपको गले का कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइक मी, सो यू कैन गो अहेड एंड डू दैट, that's one good wonderful way out. So very good guys, so I hope that we'll have this successful execution of study buddies in future, and let's see how it goes. So we were here today for our session on art of negotiation. Haji, ek minute. Haji. Okay, so since we do not have much time, हम लोग इस टॉपिक को नेक्स्ट वीक भी पिकअप करेंगे। नेक्स्ट वीक हमारे साथ होंगे आनंद सर फ्रॉम जोधपुर, and we'll have a wonderful session on the same. We'll continue this topic, but for now, to start off with this topic, मुझे आप लोग से पूछना है, what do you exactly mean by negotiation? नेगोशिएशन का क्या, किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में ले आना या किसी को कन्विंस करना फॉर whatever you want. चलो बहुत बेसिक नेगोशिएशन से स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट वीक पे एडवांस नेगोशिएशंस पे जाएंगे। सो मुझे कन्विंस करना है, मुझे नहीं, आपको कन्विंस करना है अपनी मम्मी को कि आप संडे कर्फ्यू है और सैटरडे ओवरनाइट आपको अपने फ्रेंड के यहाँ पे स्टे करना है फॉर अ नाइट पार्टी। हो पाएगा? हाँ जी। ओके, सबसे पहली चीज तो आर्ट ऑफ नेगोशिएशन का सबसे पहला पॉइंट जो आधे जनों ने बोला नहीं हो पाएगा इज लाइक
इफ यू डू नॉट बिलीव यू विल बी एबल टू डू इट, आप सामने वाले को नेगोशिएट नहीं कर पाओगे बिकॉज आपकी शक्ल पे नजर आ जाएगा। नहीं आपको नेगोशिएट, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, देखो नेगोशिएशन का सबसे पहला रूल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, क्योंकि आप अगर झूठ बोलोगे आप सामने वाले को कन्विंस करना चाह रहे हो। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेगोशिएशन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग, है ना। ऐसा थोड़ी कि आज ही जाना है फिर पता चल गया बाद में मम्मी को फिर तो हाउस अरेस्ट हो गए, तो वो भारी पड़ जाएगा, राइट। फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू बिलीव दैट यू कैन कन्विंस समबडी, तभी आप कन्विंसिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कन्विंस कर पाएंगे, ड्रॉप आउट, वो आइडिया ही बहुत बुरा है, क्योंकि जाके बात भी करोगे तो सामने वाला कन्विंस नहीं होगा, आपकी शक्ल पे दिख जाएगा दैट यू आर श्योर दैट ये नहीं होने वाला, राइट। सेकेंड थिंग ऑफ कोर्स एज वी सेड दैट ट्रूथ, यू हैव टू से द ट्रूथ, जो भी सच है वो बताना है। बट स्टिल लेट मी आस्क यू अगेन, चलो सच भी बोलना है और बिलीव भी करना है कि मम्मी परमिशन दे देगी, आप क्या करें? क्या कुछ नहीं बोलना कुछ नहीं बोलना है, ये बोलना कि मैं फ्रेंड के यहाँ पे नाइट स्टडीज के लिए जा रहा हूँ, वो भी झूठी हो गया। यस यस somebody wants to put in some point. मैम मम्मा को हम ये अश्योरेंस दिलाएंगे कि हम पहले पढ़ाई कर लेंगे जितना रिक्वायर्ड है, फिर वी कैन गो। वेरी गुड ईशानिया। मैं आपको बताती हूँ इन्होंने क्या पॉइंट पिक किया है। अंडरस्टैंड द पर्सन और सामने वाले का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। व्हाट कैन बी योर मदर्स कंसर्न, ठीक है। हम लोग एक बेसिक कंसर्न ही हो सकते, एग्जाम पास आ रहे, पढ़ाई तो करते नहीं हो, तो ठीक है, लेट मी जस्ट सेटिस्फाई द कंसर्न ऑफ द अदर पार्टी फर्स्ट, और फिर मैं जाऊं अपने ऑब्जेक्टिव पर। तो अगर मुझे सैटरडे नाइट को नाइट स्टे के लिए जाना है और मैंने थर्सडे से बहुत सारी पढ़ाई करना चालू कर दिया, मम्मी देख रही है क्या हुआ, तबीयत इतनी खराब हो गई, पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं और फिर मम्मी सुपर इम्प्रेस्ड, अब बोले बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बताओ क्या चाहिए। मुझे नाइट स्टे के लिए जाना है फ्रेंड के यहाँ पे, में थक गए पढ़ते पढ़ते 2 दिन से। पॉसिबली यस परमिशन मिलने के चांसेस है, पॉसिबली यस मम्मी ये मान सकती है कि मुझे बेवकूफ बना रहे हो, हाँ 2 दिन से इसलिए पढ़ाई के ड्रामे चल रहे हैं। सो यस, पहला चीज ऑब्जेक्टिव समझना सामने वाले का जिसको आप कन्विंस करने वाले। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अदर पार्टी, क्यों वो मान सकते हैं, या क्या प्रॉब्लम है मम्मी मना करेगी, व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम, ठीक है। चलो प्रॉब्लम बताओ, उस प्रॉब्लम को पहले सॉर्ट करेंगे एंड उससे पहले सोल्यूशन निकालेंगे, इससे पहले कि वो क्वेश्चन बम्प इन करे। सो मम्मी का कंसर्न हो सकता है पढ़ाई, तो हम पहले पूरा असाइनमेंट्स वगैरह सब कंप्लीट कर लेते, दिखा लेते कि यार हो गई पढ़ाई, अभी वीकेंड पे आई कैन गो। व्हाट कैन बी द अदर प्रॉब्लम व्हिच यू वांट टू पॉप आउट। मम्मी मेरे साथ मेरी दूसरी फीमेल फ्रेंड्स भी जा रही है नाइट स्टे के लिए। हाँ फ्रेंड का नाम, जिस फ्रेंड पे हम सबका एक ना एक ऐसा दोस्त होता है जिसके ऊपर हमारे माँ बाप को हमसे ज्यादा भरोसा होता है। भाई ये तो नालायक है, इसका दोस्त फिर भी ठीक है, तो उस दोस्त को पकड़ ले आओ कि ये दोस्त के घर ही जा रहे हैं या ये दोस्त साथ में जा रहे हैं। सो दैट कैन बी वन ऑफ द वे आउट, बिकॉज वो आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे पर आपके फ्रेंड को ट्रस्ट करे, तो एटलीस्ट ब्रिंग द ट्रस्ट। तुमको क्या मतलब, तुमको तो परमिशन से मतलब है ना। मेरे घर में ऐसा मेरी ज्यादा हमेशा तो मेरी फ्रेंड्स को भरोसा है, कीर्ति और तो then bring those friends in the picture। और क्या रीजन हो सकता है? I'm helping her with the chores. Okay, so थोड़ा सा चंपी लगाना can be one of the way out। That is again negotiation में you have to crack the deal, okay। Admiring and appreciating the other person, हाँ admiring and appreciating the other person is never wrong। देखो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि दुनिया में वैसे बहुत सारा दुख भरा पड़ा है ना, एवरीबॉडी इज सैड अपसेट। कोई किसी को जाते आते तुमने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, यू मेड समबडीज डे, राइट। हाँ करेक्ट बात रही, अरे तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की मैंने देखी नहीं जिंदगी में। नहीं अभी बोलोगे लगेगा, बट जेन्युइन कमेंट्स, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स। एंड देखो मुझे ऐसा लगता है कि ओनली गुड सोल्स, एंड वी आर नॉट ट्राइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन एनीवेज कि हम क्या मैनिपुलेट करेंगे। आई एम टेलिंग यू जेन्युइन नेगोशिएशंस। लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग कब होती है? जब आपकी अच्छे टाइप्स हो, जेन्युइन टाइप्स हो, ठीक है।
जो आप चीटिंग करके मैनिपुलेशन करके टाइप्स लोगे वो आपको 1 साल 2 साल तक टिकेंगे, लॉन्ग टर्म में आपकी ब्रांड बिल्डिंग में मदद नहीं करेंगे, वो फायदा नहीं, वो नुकसान है आपका। अगर कोई चीज मेरे साथ एसोसिएशन 2 साल तक रह रही है, तो जब तक मैं उस एसोसिएशन को फिगर आउट कर पाऊंगी, जब तक मैं उससे प्रॉफिट कमाने के लायक हो जाऊंगी, तब तक तो वो एसोसिएशन टूट जाएगी। व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ दैट? सो ओनली लॉन्ग टर्म एसोसिएशन एंड लॉन्ग टर्म डील्स विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और वो कब होगी? जब जेन्युइनली यू एडमायर पीपल एंड यू नीड एन आई फॉर एडमिरेशन, जो हम कहते हैं। आपके आसपास काफी ऐसे लोग होंगे जो हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे या आप में कुछ प्लस पॉइंट्स ही ढूंढेंगे, राइट? कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा आप में नेगेटिव पॉइंट्स ही ढूंढेंगे। चलो, लेट्स कीप यू इन दैट सिचुएशन। हाउ मेनी ऑफ यू वुड वांट टू गो इन अ पार्टनरशिप विद समबडी जो हमेशा क्रिटिकली क्रिटिसाइज करता रहता है? मतलब तुम आज सर से पांव तक बहुत अच्छे से तैयार होके आ गए, राइट? लेकिन तुम्हारे बाल का एक कोई टुकड़ा बिखरा हुआ है और सामने वाले को कुछ ही नहीं दिखा, योर एंटायर अटायर, यू नो, दैट यू लुकिंग अमेजिंग, नहीं, वो उसको वही दिखेगा, ये बाल तुम्हारे सही नहीं है, राइट? है हमारे आसपास कुछ ना कुछ ऐसे जने। हाउ मेनी ऑफ यू वुड वांट टू बी फ्रेंड्स और वुड हैव सम लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विद सच पीपल? सो फर्स्ट थिंग, बटरिंग नहीं बोलूंगी मैं इसको, true admiration. So if you start off the negotiation deal admiring somebody, तो negotiation होने के chances ज्यादा हो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। Audible? Am I audible? मैम नाउ you're audible. Now I'm audible, okay. सामने वाले को स्ट्रेस से रिलीव करोगे, सामने वाले को कहीं ना कहीं हेल्प आउट करोगे, तो उसको ऐसा लगेगा दैट यू थिंक अबाउट द पर्सन। और कोई भी बंदा आपके साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन में तब जाना चाहेगा जब उसको ये लगेगा कि आप सामने वाले के बारे में सोच रहे हो, राइट? So thinking about that person or keeping that person's interest in mind is something which is very important. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप मुझे बताना डील क्रैक होगी कि नहीं होगी। आप जाते हो, आप मेरी बेच रहे हो टमाटर, ठीक है? अब आप जाते हो प्राची के पास और बोलते हो मेरी टमाटर बिकवाने में मदद, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, जो भी खाएगा उसकी हेल्थ अच्छी होगी, तुम मेरी मदद करो। विल प्राची हेल्प? नहीं, नहीं। वो बोलेगी तुम्हारा प्रोडक्ट बेस्ट है, तुम्हारा सब बढ़िया है, बट मेरे को क्या मिल रहा है? व्हाट इज माय बेनिफिट? मैं क्यों अपना काम छोड़ के तुम्हारे टमाटर बिकवाने में तुम्हारी मदद करूं? अंडरस्टैंड दिस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अदर पर्सन का इंटरेस्ट के बारे में अगर आप सोचोगे नहीं, पहली बात जो होनी चाहिए आपकी वो ये होनी चाहिए कि प्राची आप टमाटर बिकवाने में मदद करोगे तो आपको 30-40% उसका कुछ कमीशन मिलेगा एज अ सेल्स कमीशन। नाउ आई कम ऑन टू माय पॉइंट। अब मैं बोलती हूँ कि ये टमाटर बहुत अच्छे टमाटर है, ऑर्गेनिक टमाटर है, जो खाएगा उसको हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, ये बेनिफिट्स होंगे। अब मैं बाकी की कहानी बताऊं सो दैट इट हेल्प्स प्राची टू मार्केट इट अहेड। लेकिन जब तक मैंने पहली वाली बात नहीं बोली, उनकी कान ही नहीं खुले, तो पूरा भाषण दे दिया, उन्होंने कुछ नहीं सुना। शी वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट लाइन टू कम, मेरा क्या फायदा। सो बिगिन द नेगोशिएशन डील्स विद द एडवांटेज ऑफ द अदर पर्सन। जब तक आप उसको उसका एडवांटेज नहीं बताओगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा। किसी ने कोई नेगोशिएशन डील्स क्रैक करी है? आपने रेगुलर बेसिस पे बहुत क्रैक करी है। पॉकेट मनी कम है, ये जैकेट पसंद आ गया मुझे, तो यही जैकेट चाहिए, जाए दुकान में 1 घंटे तक भैया का सर खा गए, भैया कम कर दो, कम कर दो। अब आप में से कुछ जने, दीज आर आल्सो नेगोशिएशंस, आप में से कुछ जने तो बिल्कुल ही बार्गेन नहीं कर पाएंगे और कुछ जने उसको हाफ प्राइस में करा के उसी दुकान से निकल जाएंगे। तो 2 फ्रेंड सेम दुकान से जैकेट खरीद के लाए, एक 5000 का खरीद के लाया, दूसरा 2500 का खरीद के लाया। हाँ, हाउ एंड बाय? कोई है आपके सर्कल में बहुत अच्छे बार्गेनिंग स्किल्स वाला? अच्छा, क्या क्या ऐसा करते हैं वो लोग? अच्छा, यहाँ पे सबके कोई ना कोई आसपास नेबरहुड में है जो, अच्छा, तो क्या मम्मी, सबकी मम्मीज हैं,
बार्गेनिंग स्किल में एक्सपर्ट्स। एक्चुअली हमारी मम्मी आगे हम जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे हमें पता, हमारी मम्मीज को भी नहीं पता that they are amazing financial controllers, they are amazing budget managers, right, and they are amazing negotiators. तो सारी चीजें बार्गेन कर करके हर चीज कम, प्राइस कम कर देंगे। कैसे, क्या ऐसी चीज है मम्मी में जो आप में नहीं है, या आपके दोस्त में जो आप में नहीं है, कि वो तो प्राइस कम करवा सकते, तुम कम नहीं करवा सकते। पेशेंस, पेशेंस और never feel shy to get a negotiation deal done. आधे जने तो पता नहीं कौन से दिमाग के ईगो में होते हैं कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, I will not bargain. That is something which doesn't suit my image, right? But both, that is your personal call. But when it comes to business negotiations, don't have that ego. Understand the difference between ego and self-respect. It's always okay to bend down a little if you have to crack a deal or get some project. आपने अगर किसी को बोला, फॉलो अप किया, अब कई बार होता है, मैं स्पेशली बताती हूँ, मार्केटिंग वाला हमारा जो दिसंबर में इवेंट हुआ था परफेक्शिया का, जिसमें मार्केटिंग टीम में कुछ जने थे, कुछ जने फाइनली डील क्रैक कर पाए, कुछ जने नहीं कर पाए। आई टेल यू द ट्रूथ, कौन से जने डील क्रैक नहीं कर पाए? जिन्होंने एक बार दो बार ट्राई किया, उनको लगा तो किसी से मांगने वाली बात है। मांग कहाँ रहे हो तुम? Are you asking for money for free? No, you're giving them something in return. मार्केटिंग इसको ही कहते हैं, है ना? आज आपको कोई जैकेट बेच रहा है तो उसको क्या शर्म आनी चाहिए कि वो जैकेट बेच रहा है? नहीं ना, वो तो आपको बेच रहा है, बदले में पैसे ले रहा है. So he's trying to market it to you. He's trying to make it attractive, look attractive to you so that you pay money. तो किसी के जेब से पैसा निकलवाना सबसे बड़ी आर्ट होती है. तो अगर आप फर्स्ट टाइम करते हो कोई भी डील क्रैक करने की कोशिश and they say no, and then you get discouraged and then you stop doing it, तो कोई डील क्रैक नहीं होगी कभी भी तुम्हारी. आगे प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में you might have to approach 10-20 clients, उसमें से शायद टर्न आउट खाली 2 का होगा. अंडरस्टैंड द रेशियो, नॉट इवन 10%, कभी कभी 5% भी टर्न आउट नहीं होता. पर जितने जने आज बड़ी बड़ी प्रैक्टिस लेकर बैठे उन्होंने भी वहीं से स्टार्ट किया. दे अप्रोच 20 clients, they got 18 no, probably 2 yes, still they continued, then they approached another 20 clients, फिर उनके पास 100 clients भी आ गए, वो इतने ग्रो कर गए. उसके बाद भी जाएंगे नए clients को अप्रोच करेंगे, उसके बाद भी ना सुनेंगे. So learn to listen to no. That is something which is very important. And there is a big difference between self-respect and ego. Let's draw a line between that. It's okay. आप मैं बताती हूँ, काफी जने जो बार्गेन नहीं करते उनको थोड़ा सा शाई फील होता है. इट्स नॉट इवन ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट. एट टाइम्स इट्स द शाइनेस ऑफ द नेचर. ये शाई फील होता है, मैंने बोला कम करो, उसने नहीं कम किया तो अजीब लगेगा. कुछ बोल दिया तो कुछ दुकानदार होते भी टेढ़े हैं, कुछ भी बोल देते हैं, आपके बजट में नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दो, फिर ऐसे बिल्कुल ही दिल पे चोट लगने वाली बातें करते हैं. तो that can affect us. But हाँ, अच्छा हाँ, तो ये अच्छा, ये बहुत बड़ा नेगोशिएशन स्किल होता है. मैं तुम्हें बताती हूँ. वी वेंट टू, दिस इज वन इंसिडेंस. हम लोग साउथ गए थे. तो जनरली साउथ में क्या होता है, अगर आप किसी टूर बुक करो तो वो आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह ले जाता है जो आयुर्वेदिक वाला होगा, जहाँ पे तेल पता नहीं क्या 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 मिल रहा होगा. ठीक है, तो वी वेंट देयर विद अ टूर ग्रुप, है ना. अब ग्रुप में हमारे साथ काफी सारे और कपल्स थे. तो हमारे साथ में एक थी, वो पता कर रही थी सबका प्राइस, ये ऑयल का, इसका, उसका. तो मैंने बोला यहाँ से मत लो, इसमें टूर गाइड की भी कमीशन होगी. It's going to be very expensive. We'll go to the market next day and we'll buy it from there. अभी वो जो दुकान वाला, he overheard me saying that to the female, to my friend. तो उसने बोला कि वहां पे तो डुप्लीकेट मिलेगा, यहाँ पे ओरिजिनल मिलेगा, no reason justified. But he says, but आपका बजट नहीं है तो आप छोड़ दो. आपके पास पैसे नहीं होते तो छोड़ दो. देखो अपने अपने बजट की बात होती है. और the lady was wearing gold. मतलब मेरी तो आदत ही नहीं था गोल्ड, पर शी वाज वेयरिंग गोल्ड लाइक एनीथिंग इन अ ट्रिप. तो ऑब्वियसली उसका तो बजट है, बट उसके लग गई दिल पे चोट. उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, सारे प्रोडक्ट्स दो पैक कर दो. एंड शी बॉट ऑल ऑफ देम एंड नेक्स्ट डे आई टोल्ड हर हाउ मच लॉस शी मेड. बट दैट वाज द नेगोशिएशन स्किल ऑफ दैट पर्सन. आप सामने वाले पर्सन का सॉफ्ट पॉइंट पता लगा लो. अधिकतर जनों का सॉफ्ट पॉइंट वापस कोई ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट में आके अटक जाता है. अब बोल दो सामने वाले को आपका बजट नहीं है, छोड़ दो, और सामने वाला खरीद लेता. पर राइट पर्सन को बोलो. अगर मैं स्टूडेंट्स को बोलूं आपका बजट नहीं, छोड़ दो, बोलेंगे हाँ ठीक है छोड़ दो. So you cannot play with this mantra with everybody.
ठीक है, सारी फिंगर्स एक स्केल पे मेजर नहीं हो सकती, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द टारगेट पर्सन, उसका माइंडसेट समझो और उसके माइंडसेट के हिसाब से इफ यू कैन सजेस्ट देम और इफ यू कैन पुश देम, इट कैन बी अ पॉजिटिव मोटिवेशन, इट कैन बी अ नेगेटिव मोटिवेशन। तो पॉजिटिव मोटिवेशन में आप उसको कन्विंस करो, ले लो आपके लिए कैसे अच्छी होगी ये चीज, वो बता रहे हो। और नेगेटिव मोटिवेशन में यू आर ट्राइंग टू टेल देम छोड़ दो, मत लो आपके काम की नहीं है, छोड़ दो। तो ये चीज कई बार किसी किसी के ईगो पे पिंच हो जाती है एंड देन दे ट्राई टू get into the deal. So depends on how you do it, but we'll be discussing this in the class. मुझे हवरे की तरह कोई ट्यूटर बाहर घूमता हुआ नजर आ रहा है, so reminding me that my session might last in a little while. So I will call Nikhil for now. We'll continue this discussion in the next slide, in next class with my PPTs. So right now I'll be calling Nikhil. निखिल जी आ जाइए, उनका एक सेशन था, गजराज का भी सेशन था, but we'll do it in the next session. अगले सैटरडे को along with Anand sir's session, we have a small extempo competition. Random topics there and then 5 minutes भी नहीं मिलेंगे आपको, I think, to decide as to what you have to speak. And बड़ा interesting topic है आज हमारा, but उसमें आपको बोलना है, the best speaker wins the prize. So the people who are interested will have to come or will have to give their names for the same. So यहाँ पे है निखिल हमारे साथ with his topic on fear of insults. अच्छा, तो हमारे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, very interesting topic I must say. हाँ जी, so over to you निखिल. First quality from thank you. Good morning all of you. किसी ने बोला नहीं आफ्टरनून है, पर अच्छा हुआ नहीं बोला, क्योंकि मेन चीज क्या होती है, अगर आपकी मॉर्निंग गुड है तो आपका दिन भी गुड है। आफ्टरनून का कोई रहता नहीं। तो आज फियर ऑफ इंसल्ट, अब मैम ने ये तो बता दिया कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे है, क्या करना है, पर अपन तो ठहरे जैन, अपन तो एक एक चीज को देखेंगे क्या चीज है। अपन तो रूट तक जाएंगे कि चक्कर क्या है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में होता है क्या, मेन चीज क्या बंदे को रोकती है कि वो जाके पब्लिक में नहीं बोल सकता। तो इसी बेसिस पे हमने एक टॉपिक करा है, फियर ऑफ इंसल्ट। तो कोई बताएगा फियर ऑफ इंसल्ट क्यों अपन फेस करते हैं, क्या होता है, कि मैं ही बता दूं? या उस स्लाइड को हाँ जी, I think it's better visible now. फियर ऑफ इंसल्ट में मेन दिक्कत ये होती है कि हर एक इंडिविजुअल ये सोचता है कि मैं जाऊंगा तो मेरे लिए पब्लिक क्या सोचेगी, क्या उनके ओपिनियन होंगे, क्या हमारे को दिक्कत देगा कि ये बंदा कैसा है, ये इसकी अपीयरेंस कैसी है, ये सब भी फियर ऑफ पब्लिक में जाने को मन को रोकता है। तो मेन रूट कॉज तो आप दे ही सकते हो, फियर ऑफ इंसल्ट ही होता है। क्योंकि आज आपको अगर जाना है, किसी से बात करनी है, 4 दिनों से मिलना है, तो आपको यही इंसल्ट होगी कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरा क्या स्टैंडर्ड देखेगा, या मेरा अपीयरेंस देखेगा, या मैं उसके ओपिनियन के बारे में सोचूं। तो यही होता है कि फियर ऑफ इंसल्ट में मेन आपका एम यही रखो कि आप घबराओ ना, आराम से बोलो। अभी जैसे मेरी फट रही है इधर, और मैं पूरा कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप पे। पर हर कोई परफेक्ट तो हो नहीं सकता, हम ह्यूमन बींग्स है, वी आर नॉट मशीन्स। मशीन भी परफेक्ट नहीं होती, कभी कभी तेल भी डालना पड़ता है उसमें चलाने के लिए ढंग से। तो इसी में है कि हमारे को ये चीज रोकती क्यों है, कि जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बीइंग इंसल्टेड यू होल्ड यू बैक। व्हेन यू ओवरकम द फियर बीइंग इंसल्टेड, एवरीवन एल्स होल्ड्स यू बैक। अब जैसे आज मैंने अपना फियर ऑफ इंसल्ट
मैंने छोड़ा, मैंने जो होगा देखेंगे। तो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आप मेरे को सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि मैंने फियर ऑफ इंसल्ट के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मैंने ये देखा ही नहीं कि मेरे को बच्चे क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। क्योंकि एट द टाइम व्हेन यू थिंक यू आर मोर बिगर देन यू थिंक। या सर भी आ गए। सर ग्रैब योर सीट्स। आपका इंतजार था। अब थोड़ी ज्ञान की बातें, फैक्ट फिगर पे बात करेंगे। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग स्टैटिस्टिक्स बताता है यूएसए में मेल को होता है केवल 6%, फीमेल को 8% और टोटल में 7%। ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा? सोचो थोड़ा सा। हम चाइल्डहुड ट्रेनिंग। चाइल्डहुड, वहाँ पे जिस दिन बाप बेटा शादी कर रहे थे, दोनों एक ही दिन साथ शादी कर रहे हो, तो उनको फियर ऑफ इंसल्ट है ही नहीं। जिस दिन बाप शादी कर रहा था उसी दिन बेटा भी शादी कर रहा होता है, तो उनका फियर ऑफ इंसल्ट का कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं। तो सब दिमाग में उन्होंने सब कुछ क्लियर कर रखा है कि आप अपने दूसरों को भी मोटिवेट करो और खुद भी मोटिवेट रहो साथ में लेके। तभी तो आज इंडिया की इकोनॉमी इतनी पीछे है, क्योंकि हम पीछे खींच रहे लोगों को। कि अगर कोई वो होता है ना कि एक मछली पूरे तालाब को जिंदा कर देती है, तो वो वाला ही सीन है। तो आप एग्जांपल लाइक देख सकते हो कि जैसे यूएस की इकोनॉमी इतनी डेवलप्ड है, क्यों है? क्योंकि वहाँ के लोग इन सब चीजों के चक्कर में दूसरा अपना प्रोफेशन नहीं भूलता, वो खुद का खुद ही करते रहता है। तो एक और चीज और हो गई, पढ़ेंगे ये क्या लिखा हुआ? फियर ऑफ गॉड शर्मा जी का भले ही शर्मा जी को बेटा चाय के ठेले पे चाय बना रहा है, पर साला कमा तो रहा है ना, घर वाले ये बोलेंगे हमें। तो हमारे को इसमें भी दो फैक्ट है, एक तो पॉजिटिव भी हो सकता है, एक नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इन द सेंस कि आप देख रहे हो कि हाँ शर्मा जी का लड़का इतना बढ़िया कर रहा है, इतना कर रहा है, तो कर कैसे रहा है। और नेगेटिव भी हो गया कि आपने खुद को जज कर लिया, अरे यार अब मेरे से तो होगा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज को हमें ओवरकम करने के लिए एक और बोलना, मतलब जो मेन चीज होती है हमें, तो वी हैव टू फेथ इन आवरसेल्फ। जीवन में फेथ है तो सब कुछ है, बिलीव करोगे तो आगे जाके बढ़ोगे, वरना है जो इधर ही है। और इसके लिए मेरे पास एक ग्रेट एग्जांपल है, सब जानते होंगे उस चीज को। एग्जांपल में हम बाद में आते हैं। अब आपको फेथ, ये तो ठीक है, चलो सबको भरोसा है, हाँ मेरे को भरोसा हो गया, ये हो गया, कर लिया हमने, सब कुछ कर लिया, फुल मोटिवेशन है, सब कुछ है, पर हमारे को यही नहीं पता कि हमारा करना क्या है। तो हमें अपना एक्स फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जो हमें वो लाइफ अर्न करके दे सके। जो लाइफ हमने सोची है, दिमाग में बिठाई है, वो हमें वो अर्न कर सके, ऐसा हमारे एक्स फैक्टर ढूंढना है। अब एक्स फैक्टर क्या हो गया कि किसी लिए कोई मनी होगी, किसी के लिए मोटिवेशन एक्स फैक्टर हुआ मनी, किसी को हो गया कि मेरे को वो ऐसी गाड़ी चाहिए, किसी को हो गया कि मेरे को ये डिग्री करनी है, किसी को हो गया मेरे को ऐसी अच्छी शादी करनी है। सबका अलग अलग फैक्टर है, पर सबको अपना फैक्टर वाइजली चूज करना पड़ता है। हैप्पी सिंगल इनफ। तो इसमें है ना, कोई बताएगा अपना एक्स फैक्टर क्या है मोटिवेशन का? एनीवन? मनी। मनी तो सबका ही है, मनी तो रूट कॉज है कि वो आपको गेन करेगा। सर का बताओ आपका एक्स फैक्टर। तो एक्सवाइजेड बहुत सारे आपकी फेवरेट कार जो आपको लेनी थी? सिक्योरिटी ले लेंगे। शॉर्ट टर्म मोटिवेशन। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन ऐसा है कि मेरे को किसी को हेल्प करनी पड़े तो मैं खुद की हेल्प कर सकूं, इतना पैसा मेरे पास हो, मेरी खुद की हेल्प हो सकेगी तो फिर मैं किसी को आपका जैसे अभी कोई मेरे को दिख गया कि भाई मुझे किसी की हेल्प करनी फाइनेंशियली, तो मेरा पैसा नहीं होगा, मैं कैसे करूँगा? खुद ही नहीं कर सकता उनकी हेल्प, तो वो मेरे लिए मोटिवेशन रहता है। तो सर इसके लिए आपने कुछ सोचा करने? पैसा कमाओ, वही तो उसके लिए प्लान्स होंगे ना आपके पास। उनके जैसे सर आपको ये तो पता पड़ गया आपका एक्स फैक्टर है कि मेरे को पैसा कमाना है, पर हमें वो प्लान एग्जीक्यूशन वगैरह सब वो भी तो करने पड़ेंगे। सब ऐसा कहते हैं कि अपने प्लान सीक्रेट रखने चाहिए। तो इसमें है ना 3 पॉइंट मैं करूंगा हाईलाइट। सबसे पहला तो आपको अपना एक्स फैक्टर, फेथ वेथ तो हो गया, ठीक है, मोटिवेशन हो गई, फेथ हो गया, सब कुछ हो गया, पर सबसे पहला आता है अपना एक्स फैक्टर ढूंढो।
उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करो और उस पर एग्जीक्यूटिव क्या कहते हैं उसको, फियर ऑफ रिजल्ट ही नहीं है, एग्जीक्यूट करो उसको। और एक और है, सिर्फ और सिर्फ देखो, डिप्रेशन एंड सब कुछ है सबकी लाइफ में, पर हमें फेथ किसके तरीके से रखना चाहिए वो मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको। देख लो इसको, जेठालाल, सब जानती है जीवन में किसी की तकलीफ नहीं, इसके तो होती है। पर जेठालाल के लिए एक्स फैक्टर ऑफ मोटिवेशन कोई बताएगा? बबीता जी, उसको पता है, देखते ही दौड़े दौड़े भाग जाता है, सब कुछ भूल जाता है। ऑनलाइन में भी बबीता जी, शाबाश। मनी का शॉर्टेज, डिप्रेशन, ड्रीम्स, फैमिली प्रॉब्लम, कैरियर को लेके, वैसे कैरियर का तो इसका क्या, सब कुछ सेट है, पर जैसे हम लोग हो गए, हमारे को कैरियर भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, पर आपको एक होता है ना कि एक्स फैक्टर होता है आपका कि हाँ बस दिमाग में वही 3 चीज चलती है, तो आपकी लाइफ आप अपने आप से मैनेज कर सकते हो, सेटलमेंट कर सकते हो अपना। एक और इसके आगे हो गया है ये, पढ़ेंगे कोई? हाँ मैं वहाँ पे पढ़ रहा हूँ। Ability to climb a tree. That will live its whole life believing that It is true. अब सबकी अलग अलग एबिलिटी होती है। अब जैसे सर है तो वो बीटी वगैरह पढ़ाते हैं, अकाउंट्स में उनको इतना परफेक्शन नहीं होगा। अब मैम है, मैम को अकाउंट्स में इनमें सब होगा पर बीटी में नहीं होगा, तब दोनों को एक्सचेंज कर देंगे तो क्या चलेगा? स्टूडेंट ही भाग जाएंगे। तो ये हमें एबिलिटी देखनी है कि आप अपने आप को किस लेवल तक ले जा सकते हो और आप में क्या क्या है जो आपको वो लेवल तक ले जा सकेगी। और टू लिव अ क्रिएटिव लाइफ वी मस्ट लूज आवर फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। मान लो एक चीज गलत होगी, अभी जैसे मैं 9th में था, मेरा एग्जांपल लेता हूँ, 9th में मेरे को आई थी मैथ्स में सप्लीमेंट्री, ठीक है, हमारे स्कूल में कम से कम 35 जने थे, सबको सप्लीमेंट्री मैथ्स में मिली, क्योंकि हुआ क्या था कि मैम आई थी नई नई, साउथ से थी, साउथ साइड, तो फर्स्ट डे आते ही हेलो हेलो हुआ, सब कुछ हुआ, हमने उनको बहुत परेशान करा और तीसरे दिन रो गई क्लास में आके। तो उस टाइम तो हमें कुछ फर्क पता नहीं पड़ा, फिर लास्ट में जब हमारा रिजल्ट आया तो उसने हम सबको रुला दिया, सबको सप्लीमेंट दे दी। तो उस एट दैट टाइम ऑफ लाइफ मेरे को लगा कि बस गया, अब तो क्या है, घर वालों ने बोल दिया बोर्डिंग स्टेज में जाओ, इधर कोई काम नहीं है। फिर हम धीरे धीरे प्रिंसिपल के पास गए, तो हमने वापस रीसप्लीमेंट्री दी, उसमें भी फेल, जबकि हम दोनों दो पास में बैठे हुए थे, सेम पेपर सेम, उसने उसके पेपर में मैंने लिखा और उसने पेपर में, दोनों तो भी फेल, वो पास और मैं फेल। तो हमने सर को ऐसा सब कुछ हुआ और सर और आए तो चेक वेक करा, तो वहाँ पे प्रिंसिपल ने मेरे को एक चांस दिया था कि आप 10th में 60 अबाउ कैसे भी फर्स्ट डिवीजन लेके आओ। तो 10th में जैसे तैसे करके मोटिवेशन तो पूरा गया था, कोई मतलब नहीं, कभी फेल हुई नहीं, 8 तक तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक तक चलते रहते ऐसे लाइन सर। पर फिर 10th में जैसे जैसे 65 आया, तो मेरे को एक सर मिले थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि तेरा लाइफ में एम क्या, मतलब सर कुछ पता नहीं, एम का तो पता ही नहीं क्या करना है, चल रहा तो चलने दो। तो उन सर ने बोला कि एक डिसाइड करो कि कॉमर्स लेनी है कि साइंस लेनी है, जिसमें जो इंटरेस्ट है। तो उस टाइम कॉमर्स ली, तो जैसे जैसे 11th आया तो सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि मेरे को पता था कि ये फील्ड मेरा यही है, मेरे को ज्यादा मॉनिटरी टर्म में ज्यादा मजा आएगा। तो जैसे तैसे 70 आए थे 11th में, फिर धीरे धीरे 12th में भी यही रहा कि घूमो पूरे साल और सब कुछ करो, फिर लास्ट में पता पड़ा अरे भाई बोर्ड आ गया, तो अब करना क्या रहा। तो जैसे तैसे वापिस मैम से ली गाइडेंस वगैरह, स्कूल में जो टीचर थे सबसे गाइडेंस करी, तो उन्होंने यही बोला कि 2 महीने अपने आप को पैक कर दो। और एक बात बता दूं, कोई हंसना, कोविड में पेपर दिए मैंने, हाँ ऐसे पास नहीं हुआ फालतू, सबने पेपर दिए, सारे पेपर हमने दिए। तो 12th में आया 86, तो हमारे खानदान में किसके इतने बच्चा था पूरे परिवार के बच्चों में से 86 किसी आए नहीं थे। तो अब हम आ गए फुल जोश में, गए 86 12th में, तो गए हम सीए फाउंडेशन के लिए, सीए फाउंडेशन में गए लोहेश भाई बताया, सीए फाउंडेशन में गए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ओ हो 190 नंबर, 10 नंबर से फेल।
वापस गया मोटिवेशन गए 3-4 महीने वगैरह, फिर पता पड़ा मीनाक्षी मैम से ACCA के बारे में कंटिन्यू करा, तो 3-4 महीने में 3 पेपर क्लियर हो गए, तो वापस लाइन बैक। फिर धीरे धीरे मैच्योरिटी आई, पता लगा कि हाँ कैसे क्या करना है, कैसे क्या रहना है, अपने साथ में किसको लेके चलना है, किसके साथ बैठना है उठना है। तो वो मेन डिपेंड यही करता है कि आपकी सराउंडिंग कैसी है और आप कैसे लोगों से डील करते हो। अब जैसे आपको कोई एक बच्चा मिला तो बोलता है चल भाई आज पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके जीवन में कोई एम नहीं है, तो आप उसे क्या सीखोगे? यही सीखोगे कि चल भाई चलते हैं, छुट्टे उट्टा मारते हैं, चाय पीते हैं। और आपकी और आपकी सराउंडिंग ही अगर अच्छी है कि वो बंदा सोचते उनके फ्यूचर में प्लान्स है, जैसे राहुल भैया हो गए, उन्होंने कितना सोच रखा आगे का, तो आप इनसे पूछोगे तो ये आपको बता पाएंगे ना कि भाई मैंने ऐसे ऐसे करा, ये वर्ल्ड रैंकर बैठे हुए हैं हमारे आगे। कंपनी मेक्स यू, आपके सराउंडिंग और आपके फ्रेंड, यही आपको है कि आपकी लाइफ डिसाइड करते हैं। और इसके आगे एक और है, अब आती है लाइफ का मोटिवेशन, कहाँ से लाया भाई दिन भर चाय पियो, बिस्कुट खाओ, चाय पियो, बिस्कुट खाओ। और ये हमारे हो गए रिलेटिव्स, बापू जी जो है। बहुत बार क्या है कि इंसल्ट होना भी जरूरी है। अब जैसे 9th में अगर मेरे को सप्लीमेंट्री नहीं मिली होती और तो मेरे को 10th में फर्स्ट डिवीजन पास होने की कोई रहता ही नहीं। तो समटाइम्स जैसे खाना तो हम खा लेते हैं और बॉडी को विटामिन की भी जरूरत होती है, सारा खाया पिया पचाने में चाहिए तो बढ़ेगा। तो इंसल्ट ऐसा नहीं है कि आप इंसल्ट को पॉजिटिव भी लो और नेगेटिव भी लो, आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी इंसल्ट काम की है और कौन सी आप नेग्लेक्ट करोगे। तो अब जैसे आपको बोल दिया कि अरे भाई तू तो मोटा है, ठीक है तो है, तेरा खा रहा हूँ क्या घर का तो वो कोई काम की नहीं। और किसी ने आपको बोल दिया कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे तेरे कोई नहीं पाएगा, कुछ और कर या कुछ ढंग से कर, ये तो तेरे बस का नहीं, तो उसका प्रूव करो ना कि देख मैंने इस तरीके से भी करा, पर मैं करके देख आज तेरे जगह में बैठा हूँ और देख मैं इधर खड़ा हूँ, स्टैंड कर रहा हूँ। बंद कर Presentation. Over any questions? पहले तो ये- पूछो पूछो आप तो इंसल्ट क्या कोई भी Questions. शर्मा क्या बारात नहीं जा रहे हैं, पूछो क्वेश्चन पूछो। तुम्हारी कविता कौन? मेरा जैसे एक्स फैक्टर है ना, तो स्टॉक मार्केट है और दुबई जाना है, बस ये दो है एक्स फैक्टर। हाँ जो रह गया था सही हुई। कोरोना में हमारी फ्लाइट वाइट सब बुक थी, पर वो सब रह गई थी। पैसे रिफंड आए क्या? आया ना रिफंड, वो पार्शियल रिफंड फुल रिफंड नहीं था। अगली ट्रिप प्लान कर लेना। गोलगप्पे इधर आ। आजा। ये हमारा एक्स फैक्टर वॉकिंग कर रहा है। Any other questions? Questions, everybody? कुछ तो होगा, क्वेश्चन पूछना। जिसने पूछा उसको खिला के पूछ लिया। हाँ वो धोया नहीं था ना इसलिए पूछ के बताता हूँ। और कुछ ठीक है, हो गया आगे। कोई तो पूछो मैम, आपका कोई क्वेश्चन। Question. Okay. मेरे को टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा निखिल. The fear of insults, very entertaining topic. And what made you pick that topic?
मैम रूट कॉज ही यही है कि आप पब्लिक में जाने से शर्माते क्यों, डरता है क्यों, तो यही इंसल्ट हो जाएगी तो क्या सोचेंगे लोग। चलो मेरे को लगता है कि फिर अगर निखिल के इस कॉन्सेप्ट को डिराइव करें तो मेरे अगर हम लोगों के पास पावर आ जाए डिस्गाइज करने का अपने आप को किसी और की तरह, मतलब ऐसे कोई पावर होती है अगले दिन, व्हिच इज वेरी राइट, निखिल इज वेरी राइट इन दैट। आपके पास पावर आ जाए कि प्रस्तुत अचानक से उठे एक दिन और नींद से लगने लग जाए और आप प्रस्तुत को स्टेज पे कुछ परफॉर्मेंस देंगे तो बिंदास कुछ भी क्या फर्क पड़ता है, नींद की और अगर कहीं दोस्त को डिस्गाइज कर पा रहे हो तो और ही मस्त मैम होगे। दोस्त आपका ऐसा होता है, उसकी ना वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना आप अपने फ्रेंड से जो बात करने में शर्माते नहीं हो, क्योंकि आपको पता है इसकी तो क्या ही है तो आप उसको बता सकते हो ना कि जो जो भी आपकी प्रॉब्लम है। मैम मेन यही होता है कि आपके सराउंडिंग्स कैसे, आप किसके साथ उठकर बैठते हो, यही आपको डिसाइड करेगा। थैंक यू एवरीवन। हमारा एक ट्रेडिशन है जो हम हर बार फॉलो करते हैं। दिस इज समथिंग व्हिच वी डू एवरी टाइम वी गेट अ रैंक। सो हमारे कुछ ढोल वाले बाहर आए हुए हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि ये हर बार ही होता है। सो जो ट्रेडिशन है उसको तो छोड़ेंगे नहीं। सो वी हैव अ स्मॉल पार्टी, a kind of 15-20 minutes का डांस पार्टी। So online वाले will join us virtually for the party and offline वाले बाहर आ जाएंगे। जो हमारे ढोल वाले भैया काफी देर से वेट कर रहे हैं। Amazing presentation. Let me also tell you that all the students who are presenting, इनमें से एक best speaker, once we are done with the presentation month, which is February and March में हम लोग एक best speaker का award रखेंगे. So yes, you guys can vote for your best speaker जिसको भी आपको लग रहा है. So just message in the chat box app के I am voting for this person और फिर आगे जितने भी आते जाएंगे। ऐसा नहीं कि हर एक के लिए वोट करो, हमारे लिए वोट काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। बट amazing presentation निखिल। Thank you everybody and we'll join in for the dhol party, dhol celebration. चलो मैं online वालों को I'll just take the laptop outside so that you can be a part, virtually a part of the ceremony as well.